Good morning, 11th class. This is Ajay Sharma, and I have taken the topic of binomial. What is binomial? If we take two terms and will expand whose power n is called binomial. Binomial means bi means two, and nomials means like a polynomial. Polynomial, we have learned about polynomial in 10th class. It's very easy topic. You have two and more terms are called polynomial. But now we discuss about binomial. Binomial is only about the two terms. Two terms like a plus b whole power 1 is equal to a plus b. A plus b is whole power 2 is equal to a square 2ab. B square, a plus b is whole power cube is equal to a cube 3a square b 3ab square plus b cube. These are the formulas. We know the formula, actually we learn the formula. But it is very small power. If we take the power a plus b is whole power 500, it is impossible to learn. It is impossible to actually remember the whole power 500. So we create a normal term. 1 first plus seconds whole power n. We create the whole power n. How can we discuss about this? If we know these all formulas are belong to the same kind of pattern. Like, let me tell you, सेम काइंड ऑफ पैटर्न का मतलब देखो ऐसे हो गया, a प्लस बी की होल पावर मैंने 1 किया तो a प्लस बी आया, a प्लस बी की पावर 2 किया तो a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर आया, a क्यूब किया तो ऐसे आया. एक चीज देखने वाली थी कि इसके अंदर पावर 3 थी, इसके अंदर पावर 2 था, लेकिन पावर्स का जो सम है, द सम ऑफ पावर विल बी सेम इन एवरी टर्म. लाइक सी, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है तो 1 प्लस 2 3, यहां पर भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी पावर, इन सबकी पावर कितनी आ रही है? 3 आ रही है अपने पास में. तो इसके अंदर हमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है. कैसे? देखो, अगर मैं a प्लस बी की पावर 0 कर रहा हूं, देन वी नो दैट द वैल्यू विल बी 1. इफ a प्लस बी इज होल पावर 1, द वैल्यू विल बी a प्लस बी. इफ a प्लस बी इज होल पावर 2, द वैल्यू विल बी a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर. मीन्स if power is 0, then number of term will be 1. If power of 1, then number of term is 1 2. If power is 2, then number of term is 1 2 3. Then if power is 3, the number of term will be a cube 3a square b 3ab square plus b cube. Means the number of term will be increased by 1. Like this, if we take a plus b is whole power n, अगर हम a plus b की whole power n लेते हैं तो नंबर ऑफ टर्म जो होगी उसके अंदर वो कितनी हो जाएगी? अपनी n plus 1 हो जाएगी. कितनी हो जाएगी? n plus 1. लाइक दिस कि पावर 3 ली मैंने तो एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, यानी कि 3 plus 1 कितनी टर्म्स हो गई अपने पास में? 3 plus 1 टर्म हो गई. अब इस चीज से कंक्लूजन क्या निकलता है? व्हाट इज कंक्लूजन? we know that if I take the a plus b is whole power 50, the number of term will be 51. यानी कि मेरे को इतना पता है, I know that the number of term will be 51. कितनी टर्म्स आएंगी? 51 टर्म्स आएंगी. कितनी टर्म्स आएंगी? 51 टर्म आएंगी. चलो, and also a simple relation, if power is 1, then the number of every term, the power of every term is 1 1 2 2 2 3 2 plus 1 3 1 plus 2 3, यानी कि power of every term, the sum of power of every term will be n. Like if I take a plus b is whole power 50, then it will be the number of, then the sum of power of number will be the 50. will be क्या? Will be 50. एंड देखो कंक्लूजन लिखते हैं अपन यहाँ पे. फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकल के आता है? फर्स्ट कंक्लूजन निकल के आता है, नंबर ऑफ टर्म in every
number of term will be n plus 1 if power is 1. Power कितनी है, सॉरी, power is n. If power is n, then number of term will be n plus 1. Conclusion number 2 क्या रहेगा? Sum of power of every term will be n. और तीसरा कंक्लूजन अपन क्या बोल सकते हैं, देखो इसके अंदर कि a plus b highest power will be n. Okay, a plus b highest power is equal to 2. First term's power is highest and second term power is lowest. In second term, first term's power will be decreasing and second term's power will increase like this, 3 2 1 0. but b की पावर देखो 0 1 2 3 means power of first term like a will decrease and power of second term will increase. अब ये सारी चीजें बताना क्यों चाह रहा हूं, रीजन क्या है इस सारी चीज बताने का, क्योंकि मुझे क्या लेके आना है, a प्लस बी की होल पावर n, ये लेके आना है भाई, ठीक है. एंड द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज I wants to know the general term of a plus b's whole power n. I wants to know about the a plus b's whole power n, and I have little bit information about this. What is the information? कि इसकी पावर होगी वो हाईएस्ट होगी और क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, n माइनस n, ठीक है. एंड सेकेंड टर्म्स पावर विल डिक्रीजिंग इसमें 0 1 2 3 and n. Okay, also we know that the sum of every term is n. See, n minus 2 plus 2 is equal to n minus 3 plus 3 is equal to n minus n 0 n. यानी कि हर टर्म्स की पावर क्या होगी, n होगी. हर टर्म की पावर कितनी होगी अपने पास में, n होगी, ठीक है. बट क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एवरी टर्म की कोफिशिएंट्स क्या होंगे, इस बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है. सी, पावर 0 थी 1, पावर 2 1 थी तो a प्लस बी, पावर 2 थी तो a square 2ab plus b square. We know the coefficient is 2 and a plus b is whole power 3. अब पावर्स के लिए भी कोई अपने पास में रूल होना चाहिए, बट रूल तो मेरे को अभी तक कोई समझ में आया नहीं. पावर्स के लिए भी क्या होना चाहिए हमारे पास में, रूल होना चाहिए. वी हैव रूल फॉर पावर बट वी डोंट हैव एनी रूल. So there come a scientist called Pascal who give the Pascal triangle for the coefficient of a plus b's whole power n. So what is Pascal triangle? I will tell you. Pascal triangle क्या था, पास्कल ने एक ट्राइंगल दिया भाई, और उस ट्राइंगल के थ्रू उसने बहुत हद तक हमें कोफिशिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी. काफी हद तक उसने कोफिशिएंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी. मैं आपको आई विल टेल यू इन वेरी सिंपल वे. a plus b whole power 0 is 1. Know that a plus b's whole power 1 is a plus b. a plus b's whole power 2 is a square 2ab plus b square. a plus b's whole power cube is a cube 3a square b 3ab square plus b cube. आप बोलोगे सर ये बार बार लिख के परेशान क्यों कर रहे हो. We have written so many times these terms and you will be bored with that, but
I will tell you about the relation between these coefficient. See, Pascal triangle coefficient is 1. Okay, now we draw a triangle and then सेम लिखना है, देन क्या करना है, इसको सेम लिखना है, ठीक है। अब देखो भाई 1 and 1 कोफिशिएंट देखो 1 1 सेम आया। अब आपको नेक्स्ट टर्म में सो वी विल ड्रॉ ए ट्राइंगल, ओके। देन जो फर्स्ट नंबर है उसको सेम लिख लेना है और जो लास्ट नंबर है उसको भी क्या कर लेना है, सेम लिख लेना है अपन को। और फिर इन दोनों क्या कर देना है, सम कर देना है। 1 + 1 कितने हो गए, 2। सी द कोफिशिएंट इज 1 1, द कोफिशिएंट इज 2 2, द कोफिशिएंट इज 1 1, सेम है। चलो आगे स्टेप में क्या करेंगे अपन, इसके नीचे ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के नीचे ट्राइंगल नहीं बनाना, अदर देन ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने बोला सेम और लास्ट स्टेप में मैंने बोला सेम। फिर क्या करना है, सम करना है। 1 + 2 इज 3, 2 + 1 इज 3। सी द कोफिशिएंट 1 3 3 1। We also know a + b whole power 4 is a की पावर 4 4a³ plus 4ab³ sorry 6 6ab³ a² b² 4ab³ plus b is power 4. So draw a triangle, triangle, triangle and triangle. It's so easy. 1 and 1. Sum of these number are 1 + 3 is 4, 3 + 3 is 6, 3 + 1 is 4. See, the coefficient will be the same. But if we draw, then now we can write a + b is whole power 5. How? See, first term's power is maximum, last term is power is maximum. Okay? अब क्या करते रहो, इसकी पावर तो डिक्रीज करते रहो, इसकी पावर क्या करते रहो, सॉरी इसकी पावर यहां से इंक्रीज करते रहो, इसकी पावर डिक्रीज करते रहो। यानी कि इसकी पावर 4, फिर इसकी पावर 3, फिर 2 और फिर 1 और लास्ट में क्या कर दो आप, 0 कर दो। इसको अच्छे से लिख लेते हैं b5। यहां पर जो सेकंड टर्म है उसकी पावर क्या करते रहो आप, बड़ा ही इजी है, सेकंड टर्म की पावर क्या करते रहो आप, इंक्रीज करते रहो। यानी कि यहां पर 0 1 2 3 4 एंड 5 तो अपन ने लिख ही दिया भाई। 5 तो हम क्या कर चुके हैं, पहले से लिख चुके हैं। सो and check sum of power of every term will be 5 5 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, 1 + 4 5 and these are all 5। इसको ढंग से लिख लेते हैं। okay, that's it. Now we will talk about the coefficient triangle, triangle, triangle and triangle. So then 1 + 4 5, 4 + 6 10, 4 + 6 10 and 5 and 1. So 1 5 10 10 5 1. So see, we can write, but इससे प्रॉब्लम क्या हुई, we have problem, a very big problem with that, because if we do the Pascal triangle, somebody asked about a + b is whole power 10. We can write a + b is triangle, हम a + b के whole power 10 के लिए ट्राइंगल बना सकते हैं, कोफिशिएंट्स लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, there is no problem with that. बट पावर आ जाए 195। अब क्या करेंगे हम, अब दिक्कत हो जाएगी भाई, इतनी बड़े पावर्स के लिए हमें पास्कल ट्रायंगल बनाना इट्स नॉट सो इजी। सो पास्कल का यहां तक ही रूल था। पास्कल का रूल बहुत ही ज्यादा, मतलब मान के चलो आप, इजी तो था बट यूजफुल नहीं था बहुत ज्यादा। क्या नहीं था, अपने यूजफुल नहीं था। इट्स नॉट यूजफुल फॉर अस बिकॉज mathematics is so broad. It's not about a plus b is whole power 10 and 90 and 30 and 40 50. It's about 200,000 power n. So always we will talk about the whole power n. We will always, हम क्या करेंगे, इसकी जनरलाइज टर्म के बारे में बात करेंगे। इसकी जनरलाइज टर्म होगी क्या, अब पावर 195 आ गई तो अपन क्या करेंगे, तो गड़बड़ हो गई भी। यहाँ पर जो वो एक नई फंक्शन यूज हुआ है, वो है एनसीआर। अब ये एनसीआर है क्या, ये एनसीआर एक ऐसी चीज है जो हमें इस सारी समस्याओं को, जिस सारी प्रॉब्लम्स को क्या कर देगा,
सॉल्व कर देगा। इन सभी चीजों को मैं आपको बताता हूं धीरे धीरे। क्या होता है एनसीआर, कैसे यूज करते हैं अपन इन सब चीजों को। देखो भाई, इसकी जनरलाइज टर्म जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, वो जनरलाइज टर्म मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जनरलाइज टर्म्स अपन कैसे यूज करते हैं ए प्लस बी की होल पावर एन की। ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, इट डजेंट मैटर। देखो भाई, इसकी जनरलाइज टर्म बताने से पहले मैं आपको बता देता हूं एनसीआर के बारे में थोड़ी सी जानकारी, क्योंकि बिकॉज 10th क्लास में we have studies about probability but we do not use NCR, but now in 11th class we will also study about the probability but we will use NCR, NPR. NCR is a combination, NCR is a combination, permutation combination, वही है ये permutation और combination। NPR भी यूज करेंगे अपन इसके अंदर 11th क्लास के अंदर। ये permutation में यूज होएगा, ये किस में यूज होगा, combination में। लेकिन फिलहाल but now it is useful for us in बाइनोमियल। किस में यूज होगा, ये बाइनोमियल में यूज होगा। कैसे यूज होगा, क्या चीज है, उससे पहले आई विल लेट यू नो अबाउट द फैक्टोरियल। सी एनसीआर, एनसीआर मींस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर ऑन एन माइनस आर फैक्टोरियल। व्हाट इज एन फैक्टोरियल? फैक्टोरियल एन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फैक्टोरियल 5 हो मेरे पास, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मीन्स डिसेंडिंग टाइप में उसका मल्टीप्लीकेशन, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका मल्टीप्लीकेशन, मीन्स फैक्टोरियल एन विल बी एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू डॉट 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 एन माइनस एन। ठीक है, ऐसे है भाई। अब आपके पास क्वेश्चन अराइज होता है कि सर फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होगी जी? फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होगी भाई? 1 होगी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भाई। इसमें हमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। और माइनस के फैक्टोरियल कभी भी डिफाइन नहीं होते। माइनस के जो फैक्टोरियल होते हैं वो डिफाइन नहीं होते, और जहां होते हैं, अब बोलो सर जरूरी थोड़ा ना है 5 का फैक्टोरियल है, 1/2 का फैक्टोरियल भी आ सकता है। तो देखो ये थोड़ा हायर लेवल हो गया जो आप लोग 12th क्लास में पढ़ोगे, या फिर आप आगे चल के इसको पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे इसको। जो 1/2 पावर एन है, ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है, डुप्लीकेशन फॉर्मूले को तरीके से अपन इसको यूज करेंगे। फिलहाल हम हमारा जो यूजफुल पार्ट है उसी के बारे में बात करेंगे, और वो यूजफुल पार्ट क्या है? एनसीआर। ये हमारा क्या है? यूजफुल पार्ट है। ये क्या चीज होती है, कैसे यूज होती है, इसमें एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। फैक्टोरियल एन को मैं लिख सकता हूँ एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये सारी चीज कैसे यूज होती है वो देखो। अगर हमारे पास a प्लस बी की पावर n हो, तो आप जानते हो, देखो एनसीआर को तो आप लिख लिया होगा आपने, तो आप जानते हो, यू नो दैट, कि जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर मैक्सिमम होगी, और फिर पावर क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। क्योंकि हमें जो इश्यू है, हमें इश्यू पावर्स को लेकर नहीं है, हमारा इश्यू है इसके कोफिशिएंट्स को लेकर, कि हमें कोफिशिएंट का पता नहीं लग पा रहा। लास्ट में हमारे पास में आ गया, ठीक है। और जो b है उसकी पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 कर लो, यहाँ पर 2 कर लो, चलते चलते लास्ट में b की पावर क्या कर लो आप? n कर लो भाई। अब इश्यू है, तो यहाँ पर यूज होएगा n मतलब नंबर ऑफ टर्म, m मतलब नंबर ऑफ टर्म, nc0, 0 मतलब ये स्टार्टिंग 0 से करेगा, nc0, nc1, nc2 और लास्ट में ncn। अब इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे कि मेरे पास में आ गया a प्लस बी होल पावर 4। आपने इसको पहले से खोल के देखा है, क्या होता था? a पावर 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर a b क्यूब 4 एंड b पावर 4। बट अब हम इसको करेंगे हमारे फॉर्मूले से। देखो भाई कैसे करेंगे? a की पावर 4, nc0 होता है भाई, ये nc0 की वैल्यू 1 है, nc0, nc1 a क्यूब b, nc2 a स्क्वायर b स्क्वायर, nc3 a b क्यूब, nc4 a की पावर 0 एंड b की पावर 4। ओके, नाउ nc0 रफ में देखो, nc0 की आप वैल्यू निकालोगे तो कैसे लिखोगे? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 एंड n माइनस 0, n माइनस 0 विल बी फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n गए, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू मैंने बताई आपको 1, तो 1/1 वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 1, यानी कि a की पावर 4 प्लस nc1 फिर रफ निकालो, रफ में करो nc1 यानी कि फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 और n माइनस 1। फैक्टोरियल n को मैं लिख सकता हूं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, मैंने बताया था आप लोगों को पहले ही,
n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा ओनली n, nc1 विल बी n, nc1 विल बी n, यानी कि इसकी जगह सॉरी अपन ने n की वैल्यू तो पुट ही नहीं करी, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 4 है, तो यहाँ पर सब जगह कितने करते जाओ आप 4 करते जाओ, कितने करते जाओ 4 4 एंड 4 nc, तो ये कितना हो गया भाई, ये भी देखो n हटा दिया हो गया 4c0 4c1 4c2 4c3 एंड 4c4, तो ये हो गया a की पावर 4, ये हो गया n यानी कि मेरे पास कितना था 4, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 4 a क्यूब b 4c2 निकाल लो आप, कैसे निकालोगे 4c2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 एंड 4 माइनस 2 कितने हुए फैक्टोरियल 4 2, फैक्टोरियल 4 को लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल, 2 इंटू 3 कितने हो गए 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको खोलोगे आप ये आएगा 4ab क्यूब और ये भी हो जाएगा आपका b की पावर 4, ऐसे हो जाएगा आपका ये b की पावर 4, ठीक है। तो देखो कहां तक पहुंच गए अपन, a की पावर 4 4a क्यूब b 6a स्क्वायर b स्क्वायर, और देखो भाई ये और ये क्या हुई आपकी सेम ही वैल्यू दे दी है आपको, सेम टू सेम मालूम पड़ रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि इसकी वजह से हम कोई भी पावर हो फाइंड कर सकते हैं भाई, तो इसको एक बार एकदम साफ सुथरे तरीके से लिख लेते हैं कि अपन इसको करते कैसे हैं, एकदम साफ सुथरे तरीके से, क्योंकि ये बिल्कुल ही देखो भाई कैसे करेंगे अपन इसको, a प्लस बी को छोड़ो, अब आप जनरलाइज पे आ जाओ, यहां पर कोई भी फर्स्ट टर्म होगी, यहां पर कोई भी सेकंड टर्म होगी उसकी पावर n, तो स्टेप ऐसे आएगी nc0, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर वही रहेगी जो इन दोनों का माइनस होके आएगी, यानी कि n माइनस 0 तो आ जाएगी n, और सेकंड टर्म की पावर जो इसके जो नीचे होगा वही आएगी, तो सेकंड की पावर 0 जो लगानी जरूरी नहीं है इसके अंदर, फिर आएगा nc1, फर्स्ट टर्म की पावर आएगी n माइनस 1, क्योंकि पावर क्या होती है फर्स्ट टर्म की कम होती रहती है और सेकंड टर्म की पावर इंक्रीज होती रहती है, सेकंड टर्म की पावर जो नीचे से है वो फर्स्ट, फिर nc2 फर्स्ट टर्म की पावर हो जाएगी n माइनस 2 और सेकंड टर्म की पावर कितनी हो जाएगी ओनली 2, एंड देन सो ऑन, मींस लाइक इफ वी टेक एंड आर टर्म ncr, कोई rth टर्म है ncr, देन फर्स्ट टर्म की पावर हो जाएगी n माइनस r और सेकंड टर्म की पावर क्या हो जाएगी, इसका जो नीचे वाला है वो r, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट वाली टर्म की बात करें ncn, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म होगी उसकी पावर हो जाएगी आपकी n माइनस n, तो 0, 1 की पावर 0 लगाती है तो खत्म हो जाएगा, एंड सेकंड टर्म की पावर कितनी हो जाएगी आपकी n, सेकंड टर्म की पावर कितनी हो जाएगी आपकी n हो जाएगी। ये एक जनरलाइज टर्म है, लेकिन इसमें एक छोटी सी सोचने वाली बात है, वापस आते हैं अपन इसके ऊपर, इसको अगर मैं मेरे फॉर्मूले से लिखूं तो ऐसे लिखूंगा भाई 2c0 a की पावर 2 2c1 इसके 2 माइनस 1 1 और b की पावर 1 एंड 2c2 a की पावर 0 b की पावर 2, इसको इस जनरलाइज टर्म से मैं लिखूंगा। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये स्टार्ट होता है 0 फिर 1 फिर 2, यानी कि जो फर्स्ट टर्म था, कौन सा टर्म था मेरा फर्स्ट टर्म, वहां मैंने लिया nc0, अगर मैं सेकंड टर्म यूज कर रहा हूं तो वहां मैं ले रहा हूं nc1, और अगर मैं थर्ड टर्म यूज कर रहा हूं तो वहां ले रहा हूं nc2, मींस जो भी मैं टर्म ले रहा हूं यहां पर मैं उससे एक कम ले रहा हूं, यहां पर मैं उससे एक कम ले रहा हूं, या मान के चलो मेरे को 17th टर्म चाहिए किसी पावर के अंदर, a प्लस बी की होल पावर है मान लो 20, और मेरे को उसका 17th टर्म चाहिए, कौन सा टर्म चाहिए मेरे को उसका 17th टर्म चाहिए, तो मैं हमेशा यहां पर जैसे कि 20c, हमेशा यहां पर उससे क्या लूंगा एक कम लूंगा, उससे 17 चाहिए मेरे को तो उससे एक कम लूंगा 20c 16, और उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है वो इन दोनों के माइनस में से होगी यानी कि 4, और सेकंड टर्म जो होगी वो जो सेम होगी वो सेम टू सम इसकी आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो अपन इसको और अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई, वी विल डिस्कस अबाउट इट वेरी ब्रॉडली, बट छोड़ेंगे नहीं अपन इसको किसी भी तरीके से कि 20c11 मींस ये मेरा 17th टर्म है, कौन सा टर्म है ये मेरा 17th टर्म, तो जो भी आपने यहां पर थोड़ा सा ध्यान दिया होगा nc0 ये इसका फर्स्ट टर्म था, t1 ये इसका फर्स्ट टर्म था, ये इसका सेकंड टर्म था, ये इसका थर्ड टर्म था, ये इसका जो भी टर्म्स था, ठीक है, ये इसका, और ऑलवेज जो लास्ट टर्म होता है वो n+1 टर्म होता है, ये मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि देखो 2 पावर थी तो टर्म कितने आए 3 आए, n पावर होगी टर्म कितने आएंगे n+1, तो लास्ट जो टर्म होगी वो कितनी होगी n+1 टर्म होगी भाई,
ठीक है, तो यहां से मैं जनरलाइज अगर इसको मैं थोड़ा सा करूं कि r प्लस वन टर्म विल बी, कोई भी r प्लस वन टर्म पूछ ले तो वो क्या हो जाएगी एन सी आर, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर n माइनस आर और सेकेंड टर्म की पावर हो जाएगी r, यानी कि ये हो जाएगा टी आर प्लस वन, टी आर प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि मान लो आपके पास क्वेश्चन आया x प्लस वाई की होल पावर 7, होल पावर कितनी आई 7, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म आएंगे इसके अंदर 8, कितने आएंगे, नंबर ऑफ टर्म विल बी 8, श्योर। देन इफ एनीवन आस्क्स अस अबाउट द फिफ्थ टर्म, विच टर्म, फिफ्थ टर्म, सो हम इसको लिखेंगे 4 प्लस वन, 4 प्लस वन विल बी फिफ्थ, और यहां लिखेंगे 7c, कितना, फिफ्थ नहीं लिखेंगे, कितने लिखेंगे 4, 7c 4, x की पावर, x फर्स्ट टर्म है उसकी पावर इन दोनों का माइनस कितना आ गया 3, एंड y की पावर जो यहां पर है वो सेम टू सेम, तो ये जाएगी 7c4। अब 7c4 को अपन रफली यूज करेंगे, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 4 और 7 माइनस 4 कितने होते हैं फैक्टोरियल 3, ये तो होता है फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r अप इनटू n माइनस r, ठीक है। फैक्टोरियल 7 को लिखता हूं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल को देखो, फैक्टोरियल 4 से ये वाला फैक्टोरियल 4 पूरा कैंसिल आउट, और यहाँ फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 इंटू 2 होते हैं 6, 6 से 6 कैंसिल आउट, कितने हुए 7 इंटू 5 कितने हुए 35, तो यहाँ पे आएगा 35 एक्स क्यूब वाई की पावर 4। इजी है, देखो बड़ा ही इजी है इसको सॉल्व करना, कि आपके लिए कोई भी टर्म दे दिया उसको आप निकाल सकते हो। एक एक्सपांड करना और सिखाता हूं आपको मैं, जनरलाइज टर्म से एक्सपांड कैसे करते हैं। कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और उसको क्या करते हैं अपन एक्सपांड करते हैं, वी विल एक्सपांड इट। अच्छा सा क्वेश्चन कैसे, x बाई 2 माइनस या प्लस ले लेते हैं y बाई 3 की होल पावर, आप बोलो कितनी ले भाई, कितनी ले पावर 9 लेते हैं, पावर कितनी लेते हैं 9, 9 पावर लेने का मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी आ जाएगी 10, नंबर ऑफ टर्म विल बी 10। इजी है, सोल्व करते हैं, स्टार्ट करेंगे 9c 0 से, जो फर्स्ट टर्म है आपका वो लिख लो x बाई 2 और उसकी पावर कितनी हो जाएगी 9, ठीक है। फिर 9c1 फर्स्ट टर्म है उसकी पावर हो जाएगी 8, 9 माइनस 1 8, एंड सेकंड टर्म कितना है मेरे पास में y बाई 3, इसकी पावर हो जाएगी 1, फिर हो जाएगी 9c2, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर कितनी हो गई 7 और सेकंड टर्म की पावर हो गई 2। ऐसे ही चलता रहेगा भाई, इसमें तो आपको 10 टर्म्स लिखनी पड़ेगी, काफी टाइम जाएगा। ऐसा करते हैं, इस टर्म इसका कोई भी नंबर ऑफ टर्म पूछ लेते हैं, मींस आपको वही पूछ ले कोई इसका 8th टर्म बताओ, एनीवन विल आस्क यू अबाउट द 8th टर्म की 8 टर्म बताओ, तो आप क्या लिखोगे 8 टर्म को कैसे लिखोगे 7 प्लस 1, कैसे लिखोगे आप 7 प्लस 1। सीबीएसई के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज है जो बाइनोमियल की, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपांशन से पूछा है आपसे, बड़े ही इजी क्वेश्चंस पूछे हैं उसने, ना ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे हैं। विल आस्क यू अबाउट एक्सपांशन, अबाउट द टर्म, अबाउट नंबर ऑफ टर्म। एक मिडिल टर्म का क्वेश्चन और आएगा कि भाई इसकी मिडिल टर्म फाइंड करो, वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा सा पक्का कर लेते हैं, ठीक है। बात करते हैं t7 प्लस 1, t7 प्लस 1 विल बी n c r, r मीन्स दिस, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे पास में x बाई 2, उसकी पावर हो जाएगी, इसमें से इसको माइनस करो कितना आया 2, एंड सेकेंड टर्म विल बी दिस, ठीक है। 9c7 मीन्स फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 9 we will write like 8 factorial 7, factorial 7 cancel out, 4 36 x square upon 4 y 7 upon 3 power 7, 3 raised to power 7, and we will expand 3 raised to power 7 in 7 time, like 3, then very and ये x square y7 upon 3's power 2 will be in denominator, 7 minus 2 will be 5, then coefficient will be 1 upon 3 raised to power 5, 1 upon 3 raised to power 5,
ओके, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बाइनोमियल आस्क इन एक्सरसाइज ऑफ, आपकी जो भी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में मिडिल टर्म के बारे में आपके क्वेश्चन पूछे हुए होंगे, मिडिल टर्म के बारे में आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यू विल फाइंड नो डिफिकल्टीज इन, ओके। देन थैंक यू क्लास, वी विल discuss about the middle term in next class. Middle term is very easy and you will find in AP. मिडिल टर्म एपी के अंदर आपने क्या करिए, फाइंड करिए भाई, वैसा ही कुछ है, वही सारी कॉन्सेप्ट है, वही सारी चीजें वो फाइंड करेंगे। मैक्सिमम टर्म की टर्म्स आएंगी वो विल फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट क्लास में अपन इसको करेंगे। थैंक यू।